Hey there, my name is Neha, and today in this class we are going to discuss the gist of the chapter Summer of the Beautiful White Horse. Class 11th, Snapshots, chapter Summer of the Beautiful White Horse. So before starting the gist of the chapter, I would like to introduce you all with the Geroglanian family. Now in this chapter we are going to study about this family, and this is really very famous for their honesty. This family, all the members of this family from 11th centuries, they have maintained a reputation in the society for their honesty and for their integrity. आज तक इनके किसी भी मेंबर ने कभी झूठ नहीं बोला. That's what they are famous for. And also they are poverty stricken. They are very humble and very generous kind of people. Like they help people. कोई भी इनसे कुछ भी मांगने आया, कोई परेशानी में है, so they had this tendency of helping others. So because of helping people a lot, it's being said कि उन्होंने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया. So now they are living in a very comical kind of poverty. So comical poverty क्यों बोला गया? Because although they are poor, yet they get something or other to eat. Like because of the reputation they have maintained in the society, people come and offer food to them. So that's why their poverty is being called a comical poverty here. So for Geroglanian family, we have studied and discussed 2 points so far. First, they are poverty stricken. They are living in a very comical kind of poverty. Second, they are famous from 11th centuries for their honesty and integrity. Right? Clear? Next, we are moving forward to the characters, like major characters of the chapter. First, Aram. It's a boy of 9 years, and there is one thing that we are going to discuss right now for Aram is he is a damn horse lover. Like he's crazy for horses. He's like mad after horses. But then, as we have already discussed that they are poverty stricken, उनको खाना भी पता नहीं कैसे कैसे मिल रहा है, तो उस समय पे horse खरीदना was a big deal. Like you need, real money to buy a horse, जो कि इनके पास नहीं था. That's why it was just a dream of Aram to buy a horse and to ride a horse one day. वो सोचता था कभी पैसा आया, जैसे हम सोचते हैं कि कभी पैसा आया तो ऑडी लेंगे, तो BMW लेंगे, तो ये क्या सोचता था, कभी पैसा आया so I'll buy a white horse. मेरी लाइफ का एक ड्रीम है. That's what Aram was passionate about, and he was just a boy of 9 years. That's it. And if we talk about Aram is 13 years old boy. He's a crazy kind of boy. Like हमेशा हमारी फैमिली में कोई एक होता है ना जो थोड़ा सा एसेंट्रिक और मोरॉन टाइप्स होता है, हर चीज में पागलपन दिखाना, वैसा टाइप का. So he's a crazy streak of the family. Also adventurous person. Like he loves to enjoy new things. And also he always remains ready to take risk. वो सोचता नहीं है एक मिनट के लिए भी. He believes in living life to the fullest. Like you can take the notes if you want. And one more thing, he has a slang, like one pet line that we'll be discussing again and again, that whatever situation comes in, he always speaks a line that is, I have a way with. Like now whatsoever, I have a way with horses, with dogs. We'll discuss this thing later on in the chapter. And then there's one more character, as I've just discussed that Murad is the crazy streak of the family, one who is, a little eccentric, one who is not, really serious kind of person in the family. So इसको Murad को descendant माना जाता है किसका, Uncle Khosrow का, because Uncle Khosrow is also one of the kinds, like he's also being called the crazy streak of the family. So ऐसे कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक जनरेशन में एक ना एक कोई crazy streak इनके फैमिली में है ही. So एक जनरेशन का crazy streak Uncle Khosrow, उनकी next generation का crazy streak हमारा मुराद है, right? So now as we have just discussed, one slang line, like one line that Murad used to repeat every other day, that was I have a way with ... means वो जो भी situation है, कभी horses आते हैं तो I have a way with horses, I have a way with dogs, and with birds, वो हम discuss करेंगे आगे. Similarly, there was one slang line of Uncle Khosrow as well. You wanna know? Yeah, I'll tell you, don't worry. Uncle Khosrow was in a habit of repeating one line in every other situation, and that line is, it's no harm, pay no attention to it. Like whatsoever situation comes, उनकी एक line fix है, that is, it's no harm, pay no attention to
to it. Now I have a question to you. Let's say one day somebody comes to you and tells you like your house is on fire. What is going to be your reaction? Obviously डर जाओगे. Do let me know by writing in the comment box. Let's say if this situation comes to me, मैं तो बहुत डर जाऊंगी. Probably मेरा BP लो हो जाए डर के मारे कि घर पे आग लग गई, and I'll run towards my house to save it by whatsoever ways. मैं call करूंगी to police, fire brigade or whatsoever. This is what is coming in my mind. What is coming in your mind? Like what are you going to do in that situation? Do let me know by writing in the comment box. But do you want to know Uncle Khosrow ने क्या किया? He replied by saying, "It's no harm, pay no attention to it." This is his usual reply to every situation. Like whatsoever happens in his life, he has only one reply to every situation, that is, it's no harm, pay no attention to it. So far we have discussed a few important characters of the chapter and also about the family, Garoglannian family, to which all these characters belong, and the family is famous for their honesty, for their integrity, and also they are living in a poverty stricken situation. That's it. So now moving forward, if you want to take a few notes about William Saroyan, then yes you can. William Saroyan was born in California and then they moved to New Jersey in 1905. Before starting the chapter, I would like to tell you a bit about the author of the chapter as well. William Saroyan is the author of the chapter and he was born in California and later on they moved to New Jersey in 1905. वहाँ उसके फादर ने कुछ फार्म में इरिगेशन और एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट किया, बट कहीं ना कहीं इसके फादर एक राइटर बनना चाहते थे और लिखते भी थे, बट उनकी डिजायर कर्ब हो गई बिकॉज ऑफ बीइंग इन पॉवर्टी स्ट्रिकन सिचुएशन. उनको एग्रीकल्चर इरिगेशन इन सब काम में लगना पड़ा. ऑब्वियसली ही कुडंट गेट टाइम टू एक्सप्लोर हिज टैलेंट, लेकिन वो टैलेंट को एक्सप्लोर किसने किया था? विलियम सरोयन ने. सो ही गॉट the inspiration of writing from his father, obviously. I hope it is clear till now. Now moving forward, हम चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है. लाइक वन फाइन मॉर्निंग एरन वेक्स अप एंड कोई विंडो से उसे बुला रहा होता है. वो जाता है और देखता है कि उसका भाई खड़ा है, एंड दैट इज मुराद, एंड विद अ वाइट हॉर्स. जैसे ही एरन ने देखा, एरन को लगा probably I am in my dreams, क्योंकि I have already told you that he was really passionate for horses. So उसको लगा पक्का sure I am in my dreams, मैं सो रहा हूँ अभी भी, it's a dream. And मतलब वो ये सोच के he is trying to console himself. फिर से आवाज़ आई, फिर से एक नॉक आया विंडो पे एंड मुराद था. एंड देन उसने फिर से बुलाया, if you want to ride the horse then please come on and join. एरन को अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा. Aram is still believing that is it a dream or what, because he couldn't believe the fact that Murad is with a white horse, because at that time purchasing white horse actually demanded real money, and we have already discussed that they were in a poverty stricken situation. So एक इंसान जिसके पास खाने का पैसा नहीं है वो हॉर्स कैसे खरीद सकता है? सो और एरन इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा अपनी आंखों को देखकर कि मुराद सच में एक वाइट हॉर्स के साथ है, क्योंकि वाइट हॉर्स खरीदना for a member of Garoglannian family was like very difficult. But still, एक दो मिनट अपने इस परेशानी के बाद finally he believed the fact that yes, it's true, जो मैं देख रहा हूँ वो सही है. It is actually Murad with a white horse. Now, जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया कि yes, कि ये मुराद के पास ही white horse है, तो मुझे ये बात पता है that they are poverty stricken and they don't even have money for you know for their basic needs. तो कैसे खरीदा होगा white horse? What is coming in your mind? Do let me know. Do you want to know मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे दिमाग में आ रहा है कि चोरी करी होगी. Obviously जब पैसे नहीं है किसी चीज़ को, किसी लग्जरी को आपको एंटरटेन करने के लिए, तो आप चोरी करके उसको पूरा कर सकते हो. आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा. एंड यू नो व्हाट, एरन के दिमाग में भी यही आया कि चोरी करके ये कहीं से हॉर्स लेके आया. बट देन माइंड कह रहा है चोरी करके लाया, बट देन हार्ट कह रहा है कि नहीं, बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट Garoglannian family, every member of Garoglannian family from 11th centuries, all the members are famous for their honesty and integrity. No member of Garoglannian family can ever tell a lie, can ever steal anything. और ये जब इसने देखा कि मुराद के पास वाइट हॉर्स है, दिमाग कह रहा है चोरी किया है, बट दिल कह रहा है नहीं,
गैरोग्लैंडियन फैमिली का कोई बच्चा 11th सेंचुरी से आज तक नहीं कर सका ये काम, तो मेरा भाई इस लीनेज को नहीं तोड़ेगा। बट आपको क्या लगता है, क्या मुराद ने उस लीनेज को तोड़ा होगा? डू लेट मी नो। अब दिल कह रहा था कि जा, व्हाइट हॉर्स है, दिमाग कह रहा था नहीं नहीं नहीं, अगर ये चोरी किया हुआ व्हाइट हॉर्स है तो नहीं जाना, क्योंकि हमारे फैमिली की लीनेज खराब हो जाएगी। So there was a huge tumult between head and heart. Head was saying, no, you should not break the lineage of the family. From 11th centuries, our ancestors have gained this name and fame, so you should not spoil it, Aram. This is what head was saying. But heart, दिल तो बच्चा है जी, क्या कह रहा था? व्हाइट हॉर्स, जिंदगी में दोबारा ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एरम, गो एंड एंजॉय, हैव अ राइड। ऐसे दिल और दिमाग के ट्यूमल्ट में बहुत बार हम लोग आ जाते हैं। आप भी आते हो क्या? डू लेट मी नो। अगर आप एरम की जगह होते, आपने क्या चूज किया होता, हेड और हार्ट? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बट मैं होती तो बड़ी दुविधा की सिचुएशन होती। बट डू यू वांट टू नो एरम ने क्या चूज किया? एरम चोज हार्ट ओवर हेड। बेचारा दिल का कच्चा था, छोटा था ना, अभी 9 years ओल्ड ही तो था। सो अब एरम ने क्या सोचा कि मैं दिल की सुनूंगा, और एरम ने फिर अपने आप को दिमाग से थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करी। क्या सोच के? ये सोच के दैट इट वुड बी कंसीडर्ड स्टीलिंग ओनली इफ आई विल सेल इट समवेयर। अगर मैं कोई सामान खरीदूं एंड देन इफ आई सेल इट समवेयर, देन ओनली इट वुड बी कंसीडर्ड स्टीलिंग। किसी का कोई सामान चुरा कर, इफ यू आर यूजिंग इट फॉर योर पर्सनल प्लेजर्स, देन इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड स्टीलिंग। तो ऑब्वियसली ये गलत लॉजिक है, बट अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एरन ने ये सोचा। He convinced himself and thought, okay then, it's not a stealing, it's not a fact of stealing, so I'm going to have a ride. और वो भागा नीचे और मुराद के पास साथ बैठा एंड हॉर्स पे बैठा। कह रहा है जब हॉर्स चल रहा था ना, ऐसे लग रहा था मेरे को जिंदगी का मेरा मकसद पूरा हो गया। It's like, a dream come true. So Aaron was living his life to the fullest in that moment, and for Aaron it was the best moment ever in his life. कह रहा मेरी जिंदगी में इससे अच्छा मोमेंट कोई नहीं था। बट देन कहते हैं ना कि कभी भी डिजायर्स पूरी नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी डिजायर आ जाती है। सिमिलरली it's a very old saying of being proven by our ancestors that a man can never remain satisfied. Something similar happened with Aram as well. Once he got the opportunity to ride on a horse, now he's still not satisfied. Now his desires, they have gone higher, and now he wants to ride the horse. अब वो मुराद को क्या कह रहा है कि चल, अब तूने मेरे को एक बार तो राउंड लगवा दिया, नाउ यू गेट ओवर दिस हॉर्स एंड आई वांट टू राइड इट अलोन। मुराद बोला, एज वी हैव डिस्कस्ड, आई हैव अ वे विद हॉर्सेस। वे विद हॉर्सेस मीन्स अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। मेरी तो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है दो हॉर्स के साथ, बट आई थिंक हॉर्स वोंट अलाउ यू टू हैव अ राइड। अब हम भी ये बात सुन रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, एरन को भी अजीब लगा, मुझे क्यों नहीं हॉर्स राइड करने देगा? जैसे तुझे राइड करने दे रहा है वैसे मुझे राइड करने देगा। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स माय हेडेक, I'll handle everything, please you give me an opportunity to ride it alone once. मुराद ने कहा ठीक है, if only if horse will allow you to. एरन ने बोला हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, हॉर्स मुझे अलाउ कर देगा, तुम अलाउ करो। मुराद ने बोला ओके देन फाइन। मुराद ने अपना एक राउंड लिया एंड ही वेंट टू इरिगेशन डिच। वहाँ पे इरिगेशन डिच होगा तो आप ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ थोड़ा पानी होगा। पानी होगा तो जब हॉर्स पानी में जाएगा तो वो छप छप जब पानी उड़ेगा तो दैट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, नो? सो एक बड़ा अच्छी सी सीनिक ब्यूटी क्रिएट हुई। सो मुराद गया, एंजॉय करके आया। एरम ने जब वो सीनिक ब्यूटी देखी, हॉर्स चल रहा है पानी में और पानी छप छप उड़ रहा है, एरम को तो बहुत अच्छा लगा। एरम ने सोचा नाउ इट्स माई टर्न। एरम बैठा सेकेंड टर्न हॉर्स पे, बट एरम से तो हॉर्स चला ही नहीं। एरम ने मुराद से कहा हेल्प मी आउट, कैसे चलेगा हॉर्स? तो उसने कहा किक इन हिज मसल्स, चल पड़ेगा। एंड देन ही किक्ड इन द मसल्स एंड हॉर्स चल तो गया, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू इरिगेशन डिच, वो उसे कहीं और ही ले गया भाई, एक ऑर्किड में, और वहां थोड़े राउंड्स लगवा के उसको थोड़ा सा परेशान करके एंड देन उसे गिरा के भाग गया।
सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था 2 मिनट पहले कि मुराद ने बोला था आई हैव अ वे विद हॉर्स, आई एम नॉट श्योर वेदर हॉर्स विल अलाउ यू टू हैव अ राइड ऑन इट और नॉट। एरन ने कहा था वो तेरे कोई हेडेक नहीं है, बट यहाँ हमको लग रहा है दैट एरन वाज राइट कि वो थोड़ा नोटोरियस हॉर्स था एंड हॉर्स डिडंट अलाउ एरन टू हैव अ राइड ऑन इट। उन्होंने एरन को गिरा दिया एंड देन ही रैन अवे। अब मुराद को बहुत टेंशन है। मुराद इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एरन, नीदर डिड ही आस्क एरन कि तेरे को लगी तो नहीं, आर यू फाइन और ऑल राइट एंड ऑल दीस स्टफ्स। रादर मुराद वाज कंसर्न्ड अबाउट हॉर्स, क्योंकि हम अभी तक ये बात समझ चुके हैं कि वो चोरी का हॉर्स था और अगर वो कहीं इधर उधर चला गया और ये पकड़े गए तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। सो मुराद इज टेंस नाउ और एरम को बोला खड़ा हो और जल्दी से हॉर्स को ढूंढ। सो दे डिवाइडेड द वेज, तुम इस साइड जाओ, मैं इस साइड जा रहा हूँ, जिसको हॉर्स मिले एंड देन फटाफट एक दूसरे को कांटेक्ट करें। फाइनली मुराद गॉट द हॉर्स एंड वो उसको वापस लेके आए और एरम ने बोला नाउ अब व्हाट नेक्स्ट। मुराद बोला आई नो अ प्लेस जहाँ मैं इसको डेली टाई करके आता हूँ, सो वील गो देयर एंड टाई हिम अप एंड टुमारो मॉर्निंग अगेन वील कम एंड हैव अ राइड, डोंट वरी, तुमको कल आराम से हॉर्स राइड करने का मौका मिलेगा। जैसे ही ये बात एरम ने सुनी, एरम ने कहा तुम्हारा तो पूरा प्लान सेट है कि इसको कहाँ पे जाके टाई करके आना है या कौन सी अच्छी हाइडिंग प्लेस है। इट मीन्स यू हैव बीन राइडिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अब मुराद को समझ तो आ गया कि एरम को सारा सच पता चल गया, बट देन मुराद ट्राई टू रिमेन नम और उन्होंने एक ही बात उसको समझाई, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये हॉर्स तुम कब से चला रहे हो, यू हैव टू से फ्रॉम टुडे ओनली, टुडे मॉर्निंग। एरम बोला बट दिस इज नॉट ट्रू। मुराद ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि दोनों लायर्स साबित हों, एक होगा दैट्स फाइन, सो आई विल हैंडल एवरीथिंग, यू हैव टू स्टिक ऑन वन स्टेटमेंट दैट इज यू हैव बीन राइडिंग द हॉर्स ओनली फ्रॉम दिस मॉर्निंग। नाउ मुराद ने एरम को समझा दिया ठीक है कि तुम्हें सच बोलना है, दैट यू हैव बीन राइडिंग हॉर्स सिंस मॉर्निंग। सो अब मेरे ऊपर है हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बिकम द लायर्स। सिचुएशन को टैकल, ठीक है, गए। आपको क्या लगता है रास्ते में कोई ने मिला होगा? लेट मी टेल यू, कोई नहीं मिला। लक अच्छा था, दे वेंट टू द वाइन यार्ड, जाके उनको हॉर्स को वहां पर टाई किया एंड देन दे केम बैक। Now every other morning they started horse riding, like every morning Murad Aram के पास आता था and then they used to go for a horse ride and they used to enjoy it, but the similar scenario happened every other day। जब Aram की बारी आती थी तो हॉर्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हॉर्स उसको ऑफ द वे ले जाके घुमा के गिरा देता था एंड जब मुराद की बारी आती थी देन ही यूज्ड टू एंजॉय इन द इरिगेशन डिच, वो पानी की छप छप, एंड एरम यूज्ड टू क्रेव फॉर इट, बट एरम को लगता था कोई बात नहीं, धीरे धीरे शायद मैं भी सीख जाऊंगा। this became a lineage basically and they enjoyed it every other day, but then one fine day John Byrow, I think I've forgotten to write the character. John Byrow is a farmer. John Byrow is a farmer and he came to Aram's house and he's sitting there and complaining, Uncle Khosrow and Aram's mother is also there, that I've lost my white horse. Now Aram ने भी ये बात सुनी that it's been a month and I've lost my white horse and I'm really upset। जैसे ही Aram ने ये बात सुनी, Aram को पूरी बात समझ आई कि ओके सो ये white horse John Byrow का है and my brother Murad has been riding this white horse since a month। My God, इतना बड़ा सच मेरे से छुपाया मुराद ने। Aram को गुस्सा आया और Aram भागा मुराद के घर की तरफ। इधर जॉन बायरो when he is complaining Uncle Khosrow that I have lost my white horse। अंकल खॉजरॉफ की क्या पेट लाइन थी, हमने डिस्कस करी थी, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो जैसे ही जॉन बायरो ने बोला कि मेरा हॉर्स चोरी हो गया है, अंकल खॉजरॉफ रिप्लाइड बाय सेइंग इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। जॉन बायरो बोला अरे इट वाज रियली एक्सपेंसिव। अंकल खॉजरॉफ बोले इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। जॉन बायरो बोला बट मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ एंड माई लेग इज ऑल्सो पेनिंग, माई लेफ्ट लेग इज हर्ट।
तब भी मैं चल के आया हूँ इतनी दूर से पैदल, सो यू प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई पेन एंड हेल्प मी आउट इन फाइंडिंग माई हॉर्स as I'm really facing a lot of difficulties. Uncle Khosrow replied by saying, It's no harm, pay no attention to it. So बार बार इसका एक ही जवाब. आपको याद है हमने डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था that when he got the news from his son Eric that your house is on fire, then also he replied by saying it's no harm, pay no attention to it. तो जिसको अपने घर की परवाह नहीं है दूसरे के हॉर्स की क्या परवाह होगी. So we can well understand that he is a crazy streak of the family. And उसी का कोई descendant हम मान रहे हैं मुराद को, because he is also kind of a crazy streak and replies in every situation by saying I have a way with, right? चलिए अभी हमने हॉर्स की सिचुएशन में पढ़ा that he replies in every situation by saying that I have a way with horses. अब हम सेकेंड फेज पे आते हैं जहां एरम को ये सारा सच पता चला है एंड वो भागता हुआ मुराद के घर गया है. एंड मुराद अपने घर एक स्पैरो का ब्रोकन विंग को रिपेयर कर रहा था एंड उसको बहुत प्यार से उसने स्पैरो को उड़ाया और एरम को बोला हाँ जी बोलो क्या हुआ है. एंड एरम ने बोला आई हैव गॉट टू नो द होल ट्रूथ, तुमने मुझसे छुपाया, दिस इज जॉन बायरोज हॉर्स. अब नाउ दे हैड अ हीटेड डिस्कशन एंड अब आपको लग रहा होगा कि शायद एरम उसको फोर्स करेगा कि जॉन बायरो का हॉर्स वापस कर दे, बट नहीं, एक बड़ी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है. एरम को ये डर है कि मुराद कहीं अब वापस ना कर दे हॉर्स. तो एरम कह रहा है मुराद को कि जब तक मैं नहीं सीखूंगा तब तक हॉर्स वापस नहीं होगा. दिस सीम्स फनी नो. मुझे भी ये लगा जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा कि एरम तो पक्का अब मुराद को फोर्स करेगा कि हॉर्स को वापस कर, बट उल्टा ही हुआ. एरम को ये डर था कि अब मुराद हॉर्स वापस ना कर दे, जब तक कह रहा है मैं नहीं सीख जाता हूं तब तक हॉर्स वापस नहीं होगा. मुराद ने बोला जब तक तुम नहीं सीख जाते इसका मतलब तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, यू आर फोर्सिंग अ मेंबर ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली टू स्टील. उसने उल्टा उसी पे ब्लेम डाल दिया एरम पे. मुराद ने, एरम कह रहा है नहीं नहीं आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू स्टील बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई वांट यू टू कीप द हॉर्स टिल आई लर्न टू राइड इट. मुराद कह रहा है ऑल राइट, तब तुझे तो 1 साल लग जाएगा सीखने में, तो 1 साल तक मैं हॉर्स को क्या अपने पास ही रखूंगा, तू मुझे चोरी करने के लिए मजबूर कर रहा है. एरम वाज क्वाइट. एरम ने बोला तो फिर कब तक रखोगे तुम ये तो बताओ. मुराद रिप्लाइड बाय सेइंग 6 months. एरम वाज लाइक 6 months, ओह या लॉन्ग टाइम, 6 months में तो मैं सीख ही जाऊंगा. एरम को लग रहा था शायद ये जवाब देगा कि 1 आध दिन में वापस करने वाला है क्योंकि ये खुद तो काफी टाइम से एंजॉय कर ही रहा था. But Murad ने बोल दिया 6 months and Aram was happy and he went back home. Now they are following this lineage of every other day, every morning, going for a horse ride and they're enjoying it. And as we have just discussed, वो same scenario होता है हर रोज की. हॉर्स Aram को enjoy नहीं करने देता, गिरा देता है, Murad को enjoy कराता है. अब one fine day they were coming back and they were taking the horse to the vineyard जहाँ पे वो रोज उसे छुपाते थे. And but then on the way आपको पता है इन्हें कौन मिला? इन्हें मिला जॉन बायरो, who is the true owner of the horse. And the moment John Byro had a look on the horse, he was surprised, puckered bro. He actually realized the fact that it is my horse. उसने दोनों बच्चों से बोला, it seems like a twin of my horse. ये तो मेरा जैसा ही घोड़ा लग रहा है बिल्कुल. Can I check the teeth of the horse? Because there was some identification mark of that horse on his teeth. So उसने कहा कि क्या मैं एक बार चेक कर लूं. अब now Aram and Murad पसीने पसीने हो गए डर के मारे. They were really petrified and they said yes you can. जैसे ही जॉन बायरो ने टीथ चेक किए, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी था. जॉन बायरो बोला ये तो 100% मेरा हॉर्स है. अब आपको क्या लगता है इन दोनों की कहानी सच सबको पता चल जाएगी या कहानी में कोई और ट्विस्ट आएगा? यू नो व्हाट, जैसे ही हम जॉन बायरो ने टीथ चेक किए, ही वाज डैम श्योर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज माय हॉर्स. 1-2 मिनट उसने सोचा और फिर पता है बच्चों को क्या बोला प्रोबेबली मेरे हॉर्स का ट्विन होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता then I would have claimed, I would have actually told this thing to the whole society that you both have stolen my horse. But I cannot do the same with you because
You both belong to the Geroglanian family. And we have just discussed that Geroglanian family, they are famous for their honesty and integrity. No member of Geroglanian family can ever steal anything because they are famous for their honesty. This is what they have gained, this name and fame from like 11 centuries. तो कह रहे अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, I would have filed a case. But then see, you both belong to the Geroglanian family, so the name and fame of your family forces me to come to a conclusion that probably this horse is the twin of my horse. And you may go now. And as I'm feeling really bad, as I'm feeling nostalgic for my horse, और वो दोनों बच्चे चले गए. But after all थे तो बच्चे ही 9 years and 11 years, कोई ज़्यादा एज नहीं है. They got really terrified and petrified now. अब उनको समझ नहीं आ रहा what to do. And finally, after a heated discussion, they decided that they are going to give this horse back to John Byro. इससे पहले इनका भांडा फूट जाए. John Byro obviously बड़ा आदमी है, समझदार है, कुछ भी करके इनकी सच्चाई जान सकता था. So without taking any risk, they decided that they'll hand over the horse again to the John Byro. And one fine morning, they went to John Byro's प्लेस बान, और वहाँ जाकर हॉर्स को चुपचाप सुबह सुबह वापस रखा. एंड जब जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे डॉग्स थे. एरम को डर लगा कि ये सारे डॉग्स बाक करेंगे. जैसे ही बाक करेंगे तो वहाँ के लोग उठ जाएंगे एंड दे विल गेट टू नो कि हम हॉर्स को वापस रखने आ रहे हैं. सो बेसिकली हमने चुराया था. बट देन मुराद क्या बोला, डोंट वरी, आई हैव अ वे विद डॉग्स. मेरी दोस्ती है, तू टेंशन में नहीं ले. एंड एक्चुअली दैट हैपेंड. जैसे ही डॉग सारे आए, मुराद ने उनको थोड़ा सा कुछ अच्छे से स्वीट जेस्चर्स किए एंड द ऑल डॉग्स वर क्वाइट. सो एक्चुअली हिज स्टेटमेंट, आई हैव अ वे विद dogs and I have a way with horses, this proved right as well in the chapter, because we have already seen how horse actually allowed Murad to have a ride with him on him, and also a horse took him to the irrigation ditch and actually made him enjoy the ride. तो ये जो उसकी statement I have a way with, this proves right. Also it proved right in the case of dogs as well. रात के समय डॉग्स हर किसी पे भागते हैं, but then they didn't bark on Murad. So this is somewhere or the other right, that he had a way with horses, he had a way with dogs. And finally after coming, चुपचाप वहाँ रखा हॉर्स को जॉन बायरो के बान में, and then they came back. After coming back now, next scene, Murad Aram की mother, Uncle Khosrow अपने घर हैं, and John Byro came, and John Byro is like in a very happy mood, and he's telling the story to everybody sitting at Aram's place that I've got my white horse back, and I'm really happy when I'm announcing the fact that my horse is stronger and is in positive spirits now. So he's rather stronger than before. So ही इज़ हैप्पी कि कोई इसको लेके गया जो अच्छे स्टेट में रखा मेरे हॉर्स को, और अच्छे स्टेट में वापस किया कि अब जो वापस आया है पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले ज़्यादा अच्छा है. एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप यू हैव एंजॉयड. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट हाउ the two members of Geroglanian family, Aram and Murad, how just like being kids, just for their fun, they have broken the lineage being maintained by the family members that was of integrity and honesty from 11th centuries. But then how there was a twist in the story when we got to know about Uncle Khosrow. It was a comic element. We enjoyed it when every other time he keeps on repeating the similar line, it's no harm, pay no attention to it. And then Murad also has a similar kind of slang, that is, I have a way with. These were the comic elements in the chapter. I hope you enjoyed it. It was really interesting. Thank you so much for bearing me for like half an hour or so. It was really nice meeting you all. Keep studying. Thank you.